میں مبارکباد پیش کروں گا یہاں کی عوام کو، اس میں کلیدی کردار یقیناً میں کریڈٹ پہلے تو اپنے شہداء کو دوں گا۔ یہاں کے جو ہمارے مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا، لیکن ایک نقطے پر سب پابند تھے، متفق تھے کہ یہاں پر امن و امان کروانا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہماری سندھ پولیس کے افسران نے ایگریسو پالیسی کے ساتھ گورنمنٹ کی اپنا کام انجام دیا۔ ابھی کام کرنا ہے، یہ تو شروعات ہوئی ہے۔ حکومت سندھ کا کامیاب امن مشن، سندھ میں کچے کے 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ حکومت اور پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، راکٹ لانچروں سمیت جدید اسلحہ حوالے کر دیا۔ کلاشنکوف اور اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی شامل۔ ہتھیار ڈالنے کی تقریب شکارپور میں ہوئی۔ ڈاکوؤں کے سروں کی قیمتیں 6 کروڑ روپے مقرر تھیں۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا سندھ پولیس اور رینجرز کو خراج تحسین۔ پنجاب کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کلچر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی اور نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ مزید سخت۔ غیر قانونی اجتماعات اور بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے۔ تمام آپریشنز میں امن کمیٹیوں کو آن بورڈ رکھا جائے گا۔ فتنہ الخارج کے دہشت گردوں نے درندگی کی انتہا کر دی۔ شمالی وزیرستان میں خارج نے بھتہ نہ دینے پر 6 انسانوں کو زندہ جلا دیا۔ خارج نے دہشت پھیلانے کے لیے گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔ گاڑی میں سوار افراد باہر نہ نکل سکے اور زندہ جل گئے۔ علاقہ مکینوں کی حکومت سے خارج درندوں سے نجات دلانے کی اپیل۔ فورسز کا خارج کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن۔ بلوچستان کے علاقے دالبندین میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی۔ تمام 6 دہشت گرد جہنم واصل۔ فورسز نے فتنہ الہندوستان کی تشکیل کا قلمقامہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف قتل اور دہشت گردی کے مقدمات۔ لاہور کی عدالت نے 108 کارکنوں کا 9 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ایک ملزم سہیل کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ ملزمان نے 2 افراد کو قتل اور کئی اہلکاروں کو زخمی کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے اہلکاروں پر فائرنگ اور ڈنڈے سوٹوں سے تشدد بھی کیا۔ سہیل آفریدی کی ہٹ دھرمی، خیبر پختونخوا بلٹ پروف گاڑیوں سے محروم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انکار پر جدید بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دی جائیں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اعلان۔ بلٹ پروف گاڑیاں کے پی نے واپس کی تھیں۔ بلوچستان حکومت نے یہ گاڑیاں مانگی تھیں۔ سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے، اضافی حفاظتی سامان چاہیے، عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات۔ مذہبی ہم آہنگی اور یکجہتی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے کہا کہ مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام امن اور محبت کا درس دیتا ہے، تشدد اور شرانگیزی کی گنجائش نہیں۔ پاکستان ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا، سب کو مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی بحری افواج کا بڑا آپریشن۔ بحیرہ عرب میں تقریباً 1 ارب ڈالر مالیت کی منشیات ضبط کر لی۔ منشیات کی مالیت پاکستانی کرنسی میں 274 ارب روپے ہے۔ بحریہ کے جہاز پی این ایس یرموک نے سعودی قیادت میں آپریشن کیا۔ محض 48 گھنٹوں میں 2 کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میں 350 کلو آئس اور 50 کلو کوکین برآمد کی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یرموک کے عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو سراہا۔ شہباز شریف نے کہا نیوی اہلکار دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا پاک بحیرہ کو خراج تحسین۔ سعودی رائل نیوی نے کارروائی کو عالمی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا۔
पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमेरिकी सदर ट्रंप का मोदी को दो टोक पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बताया, मोदी से पाक भारत ताल्लुकात पर बात की, अब पाक भारत जंग नहीं होगी, बजरिया तिजारत मामलात हल कर रहे हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराई, जंग में 7 जंगी तैयारे गिरे थे, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक अफगान बॉर्डर बावे दोस्ती 11 रोज से बंद। चमन बॉर्डर पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी वापसी की मुंतज़िर। कस्टम ज़राए के मुताबिक तुर्खम बॉर्डर दो तरफा तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तुर्खम बॉर्डर की जल्द बहाली का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान सऊद का टेलीफोनिक राब्ता। गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। बाहमी उमूर पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक। गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। किसान आपके मुल्क की ग़िज़ा खुराक का ज़िम्मेदार है, वो मेहनत मशक्क़त करके वो अनाज पैदा करता है जो पूरा मुल्क खाता है, तो उनको इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी है। गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान। इस वक्त जो गंदम अवेलेबल है हमारे पास तकरीबन 12,65,000 टन गंदम हमारे पास अपने स्टॉक्स में मौजूद है। पंजाब से गंदम और आटे की आज़ादाना नकलो हमल पर पाबंदी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आर्टिकल 151 के तहत गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुराद अली शाह का वफाक से गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये मुकर्रर करने का भी मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आटे की तरसील पर पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी का कहना है, गंदम और आटे की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में ताख़ीर की वजह बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी, नई हल्काबंदियाँ होंगी, नोटिफिकेशन दरकार होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख, नया एक्ट नाफिज हो चुका। अब मुख्तलिफ नशिस्तों के इंतखाबात बिलवास्ता तरीके से होंगे। मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। नवा माली साल 3.5% शरह नमो हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। ज़र मुबादला ज़ख़ायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान को एक और बड़ा एजाज़ मिल गया। पाकिस्तान अब जनूबी एशियाई ममालिक की नुमाइंदगी और क़यादत करेगा। पाकिस्तान को वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एसोसिएशन में जनूबी एशिया की सदारत मिल गई। भारत समेत तमाम रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने शारजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। दिफा वतन के जाने निछावर करने वाले शहदा के सालो सवाब के लिए भी खुसूसी दुआ की। हलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी ATC ने 26 नवंबर एहतजाज केस में चौथी बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हमले में 4 गाड़ियों के 85 लाख के मुचलके भी बहक़ सरकार जब्त। 24 अक्टूबर को गाड़ियों के मालिकान भी तलब कर लिए गए। लाहौर में कातिल डोर ने कोर जान ले ली। नवाकोट में 21 साला नुमान यूसुफ के गले पर डोर फिर गई। अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। नुमान की मैयत घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। अहले इलाका और घर वाले गम से निढाल। जांबहक नुमान घर का बड़ा बेटा और अकेला कमाने वाला था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मुरीद के में भी नौजवान तेज धाती डोर गर्दन पर फिरने से जख्मी हुआ।
कराची में शहरी स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खुद मैदान में आ गए। शहरी ने डिफेंस फेज 6 में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की लूटमार की कोशिश नाकाम बना दी। डाकू अपनी पिस्तौल और मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। एयर पंजाब के क़याम के लिए बड़ी पेशरफ्त, 5 जदीद एयरबस A32 लीज पर हासिल करने की सिफारिश। अंदरूनी मुल्क कराया 15,000 दुबई, 40,000 जद्दा, 50,000 मुतवक्के। पायलट की तनख्वाह 15 से 25 लाख मुकर्रर करने की तजवीज़। मंसूबे की इब्तदाई लागत 12 से 15 अरब तजवीज़। इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मुआहदे के तहत मजीद 2 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक शनाख्त के लिए लाशें फोरेंसिक मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दी गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमास 28 मुग़वियों में से 15 की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी। दूसरे इनिंग्स में टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ तो बाबर आजम की गुमशुदा फॉर्म लौट आई। बाबर आजम ने टीम को संभाल लिया। तीसरे दिन के अख्ताम तक टीम को 23 रन की बढ़तरी दिला दी। 28 साल से सेंचुरी से दूर बाबर आजम 49 रन पर नॉट आउट रहे। पिंडी टेस्ट में आसिफ आफरीदी ने तारीख रकम कर दी। आसिफ आफरीदी डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले मौमर तरीन क्रिकेटर बन गए। आसिफ आफरीदी ने इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट का 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंग्लैंड के चार्ल्स मैरियट ने 1933 में 37 साल 332 दिन की उम्र में डेब्यू पर 5 विकेटें ली थी। नुमान अली टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए। नुमान अली 850 पॉइंट्स अबूर करने वाले 7वें पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 2016 में यासिर शाह के बाद ये संग मील अबूर करने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में हसीना से तारीखी गलती, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फाइनल राउंड मिस पैराग्वे का नाम पुकारने पर मिस पनामा दाद वसूल करने पहुंच गईं। शर्मिंदगी का सामना तब हुआ जब ऐलान करने वाले मेजबान ने दोबारा फाइनलिस्ट का नाम दोहराया। पुरानी जीन्स वाले अली हैदर ने जिंदगी की 58 बहारें देख लीं। गुलकार अली हैदर ने 90 की दहाई में नौजवानों के दिलों पर राज किया। उनके गाने आज भी दिल के तार छेड़ देते हैं। और एक्शन और एडवेंचर पर मबनी फिल्म ट्रोल 2 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।